Question number 2, exercise. Exercise 1.4. Question number 2 and third part in this question, as we have already done two parts. So in this question, let us skip the third part and we do fourth part of this question, right? Okay. Fourth part of the question is A star B star is a binary operation. Star is a binary operation on Z plus cross Z plus such that 2 Z plus such that A star B is equal to A star B is equal to 2 raised to power AB, right? First of all, we will check whether this operation is binary or not. First part में हम ये check करेंगे whether this operation is binary or not. So for this part, as A belongs to Z positive, A is a positive integer, B is a positive integer, 2 is also positive. We know किसी भी पॉजिटिव नंबर की आप जो मर्जी पावर करें, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर की जाए वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, राइट? सो एज AB belongs to Z and 2 belongs to this belongs to Z positive, 2 belongs to Z positive. सो अभी आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव नंबर की हम कोई भी पावर करते हैं, इट विल बी पॉजिटिव. So 2 raised to power, this implies 2 raised to power AB belongs to Z, because power of any positive integer, power of any positive integer is always a. एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिकॉज एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि A एंड B आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स. A एंड B आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स. ए बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. सो ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा? दिस इम्प्लाइज ए बी विल बी जेड पॉजिटिव. ए बी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट? मीन दिस इज ए पॉजिटिव नंबर एंड 2 की आप कोई भी पावर करेंगे पॉजिटिव नंबर, this 2 raised to power 3 is 8, 2 raised to power 4 is 16. अगर पावर में इंटीजर है then it will be always a integer, right? This implies AB belongs to Z. This implies A into B belongs to Z positive. A into B क्या होगा? Z positive होगा. This implies 2 raised to power AB. क्यों? क्योंकि इंटीजर की पावर एक इंटीजर ही होता है, और क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर की पावर अगर आप करेंगे इट विल बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, राइट? इंटीजर टू द पावर इंटीजर इज ए इंटीजर बिकॉज पॉजिटिव पावर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, पावर of a integer power
integer power of a positive integer is always a positive integer. ठीक है, right? What? Positive integer power of a positive integer is always positive integer. This implies 2 raised to power ab belongs to z positive, right? Implies star is a binary operation. स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है. दिस मीन्स स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन. ओके, so it was our first part of this question in which we have to check whether it is a binary operation or not. Now see second part. In second part we will check whether it is commutative or not. Let commutative. नेक्स्ट हम करेंगे इसको कॉम्यूटेटिव के लिए, राइट? सो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होगा, यानी कि वी नीड टू चेक ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. हमें क्या चेक करना है कि ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल है या नहीं, राइट? ओके, एक बार इसका रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ. 2 रेज टू पावर ए बी, ए स्टार बी अगर हम फाइंड करते हैं देन इट इज ए 2 रेज टू पावर ए बी, 2 रेज टू पावर ए इंटू बी. अगर हम बी स्टार ए फाइंड करेंगे देन इट विल बी 2 रेज टू पावर बी इंटू ए. बट मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होते हैं. दिस मीन दिस इज 2 रेज टू पावर ए बी. सो ए स्टार बी और बी स्टार ए बी का आंसर सेम होगा. सो इट इज ए commutative. This operation is commutative. Okay, so let us write for AB belongs to Z positive, यानी कि अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं then implies AB is equal to BA. Implies AB is equal to BA. This implies 2 raised to power AB 2 raised to power BA के इक्वल होगा. 2 raised to power AB is equal to 2 raised to power BA. This implies, what is this? This is what? This is A star B. And this is what? This is B star A. A star B is equal to B star A. A star B अगर B star A के equal है, then we will say that star, this implies star is commutative. Star एक कैसा ऑपरेशन है? Commutative है. Now we will check whether this operation is associative or not. Now we will check whether this operation is associative or not. Third part, associative. यानी कि we need to check A star B star C is equal to A star B star C. ये हमें चेक करना है कि A star B star C के इक्वल है या नहीं, राइट? ओके, लेट A B C are 3 positive integer. ABC belongs to Z positive. First we find A star B star C. First we find A star B star C. Then it will be 2 raised to power. This is A star 2 raised to power B and C, right? And then this A star, this find करेंगे, this will be 2 raised to power this into this, A into 2 raised to power BC, right? And A star B star C
this is equal to, this is 2 रेज टू पावर, फर्स्ट 2 रेज टू पावर में कौन से दो नंबर होंगे, ए बी, फर्स्ट आपको इनको ऑपरेट करना है, देन स्टार सी, so this raised to power, this is equal to 2 raised to power, 2 raised to power AB into C, and it is not necessary that these two numbers will be equal, right? So let us see by an example. ऐसा कोई एग्जाम्पल देखते हैं हम. Suppose A is equal to 2, B is equal to 1 and C is equal to 3. Okay? Then A star B star C is equal to, अगर आप ये चेक करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, दिस 2 raised to power A is 2 into 2 raised to power B into C is 3, right? This will be 2 raised to power 2 into 8, that is 2 raised to power 16, right? Now let us find A star B star C. This is 2 raised to power AB into C. उसका आंसर हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं. This is 2 raised to power AB into C, right? So this will be 2 raised to power, what is AB? A into B will be 2 into C. What is C? C is 3. C is 3. 2 raised to power AB. AB is 2. In place of AB, we will write A into B, that is 2 into C. C is 3. So in place of C, you will write 3. This is 2 raised to power 2 is 4 into 3, that is 2 raised to power 12. And all of you know 2 raised to power 16 is not equal to 2 raised to power 12. And 2 raised to power 16 is not equal to 2 raised to power 12, implies A star B star C is equal to A star B star C, right? Not equal to. This is not equal to. It means star is not a binary, not associative. This implies star is not एसोसिएटिव. स्टार क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, राइट? सो स्टार वाज ए बाइनरी ऑपरेशन था. स्टार इज कम्यूटेटिव बट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, राइट? Let us do next part of this, that is sixth part. Question number 2, sixth part. Sixth part, star is a binary operation. Star is a binary operation. Such that R minus 1 cross R minus 1 to R minus. क्वेश्चन हमारा है स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम set of real number except 1 cross set of real number except 1 to set of real number except 1 so that A star B, साथ में हमें A star B का मीनिंग गिवन है, A star B, right?
A star B is over B plus 1. This is A star B. First of all, we need to check whether this operation is a binary operation or not. Right? अब हम कैसे पता लगाएंगे कि A star B हमारा R माइनस वन में बिलोंग करेगा. इसके लिए एक ट्रिक यूज करते हैं हम. एक बार हमें ये देखना है A is a real number, B is a real number, right? So B plus 1 will be also a real number, A will also a real number, right? Real number तो ये होगा, बट हमें चेक करना है कि कहीं A star B का आंसर -1 तो नहीं आता, right? So we need to check whether this is equal to -1 or not. A B की कुछ वैल्यूज के लिए A star B का आंसर अगर -1 आता है, in that case this operation will not a binary operation. So इसके लिए क्रॉस चेक करते हैं हम. Let us assume that A over B plus 1 is equal to -1. हम इसको -1 assume कर लेते हैं. This means A is equal to -B minus 1. यानी कि A plus B is equal to -1. A plus B अगर -1 आता है, in that case A star B क्या होगा? -1 के इक्वल होगा. So अगर हम ऐसी वैल्यूज कुछ लें, जैसे B is equal to 2 and C is equal to -3. Sorry, A is equal to 2 and B is equal to -3. So in that case अगर वो A star B निकाला जाए, A star B क्या होगा? A star B is A over B plus 1. यानी कि A what will be A? 2 over B -3 plus 1, that is 2 over -2, that is -1. And -1 does not belongs to this. It means star is not a binary operation. Okay. So let us check. Let A is equal to 2 and B is equal to -3. हम ऐसा इन A को ये assume करते हैं. So in that case 2 star -3 is equal to, this will be 2 over -3 plus 1 according to definition. A star B is A over B plus 1, right? 2 over this, 2 over -2, this is -1, and -1 does not belongs to R -1. ठीक है, ये R -1 में बिलोंग नहीं करता, राइट? इसको बिलोंग करने के लिए हमें रियल नंबर्स चाहिए था. हमारे सेट में -1 है ही नहीं और इसका आंसर -1 आ रहा है. इसका मीनिंग ये हमारे सेट में बिलोंग नहीं करता. दिस इम्प्लाइज स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन. स्टार क्या नहीं है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. ऑलराइट, लेट अस डू सेकंड पार्ट, दैट इज, ठीक है, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बट क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है? हम इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे, बट स्टिल इट इज ए ऑपरेशन, राइट? और बाइनरी ऑपरेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी एक ऑपरेशन तो ये है. ओके, नाउ लेट अस चेक कम्यूटेटिविटी ऑफ दिस ऑपरेशन. कम्यूटेटिव, for commutative we need to check A star B is equal to B star A. ठीक है, to check A star B is equal to B star A. commutative क्या होता है? For operation to be commutative, A star B is equal to B star A. Okay, now what is A star B? Let us take an example. Obviously नहीं होगा, क्योंकि ए और बी के बदलने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे. सो दिस ऑपरेशन विल बी नॉट ए बाइनरी कम्यूटेटिव ऑपरेशन. सो लेट ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3. दिस इम्प्लाइज दिस विल बी 2 star 3 is equal to 2 over 3 plus 1 according to definition. A star B is equal to A over this is 2 over 4, that is half, and 3 star 2, 3 star
this will be 3 over 2 plus 1. 3 over 3, that is 1. This implies 2 star 3 is not equal to 3 star 2. 2 star 3 is not equal to 3 star 2. This implies star is not a commutative operation. This implies star is not commutative. Star commutative नहीं है. Okay. Now let us check for associativity. अब हम इसकी associativity के लिए चेक करते हैं. Associative. Third part is associative. क्या ऑपरेशन एसोसिएटिव है? सो फॉर दैट वी नीड टू चेक. क्या चेक करना है हमें? टू चेक ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. क्या ये दोनों इक्वल हैं? If both these are equal, star is associative, otherwise star will not associative. Okay, so let ABC belongs to, let ABC are three numbers which belongs to this. Let ABC belongs to R minus minus 1, right? And obviously नहीं होगा क्योंकि commutative भी नहीं था. स्टार में हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो गए. सो हम इसको इन जनरल प्रूव करने की बजाय किसी काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव कर देते हैं कि दिस ऑपरेशन इज नॉट राइट. सो लेट अस टेक a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2. फॉर इजियर टू कैलकुलेशन वी टेक सिंपल वैल्यूज, राइट? ओके, नाउ 1 स्टार 2 स्टार 1, दिस इज व्हाट 1 over 1 star 2 over 1 plus 2, that is a star b. This is a over b plus 1 plus 1, 1 plus 1, a upon b plus 1. So 1 star 2 over 2, 1 star 1, that is 1 over 1 plus 1, that is 1 by 2. राइट. यहाँ पर हमारा ए ये है, बी ये है, तो ए अपॉन बी प्लस 1, राइट? ओके, नाउ फाइंड आउट 1 स्टार 2 स्टार 1, दिस विल बी 1 स्टार 2 यानी कि 1 ओवर 2 प्लस 1 स्टार 1, दिस इज 1 over 3 by 2, this is 3 by 2 star 1. And according to definition, it will be a. A means 3 by 2 upon b plus 1. B is 1, 1 plus 1. This means 3 by 2 in 3 by 2 upon में 2, which is equal to 3 by 4. So both these are different. This means 1 star 2 star 1 is not equal to 1 star 2 star 1. Equal नहीं है. So किसी एक एग्जाम्पल के लिए भी फेल हो जाता है, इट मीन इट इज फेल. दिस इम्प्लाइज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. दिस इम्प्लाइज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. स्टार क्या नहीं है? एसोसिएटिव नहीं है, राइट? सो दिस ऑपरेशन वाज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन बट इट वाज ए कम्यूटेटिव. दिस ऑपरेशन वाज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव. ना ये बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, नहीं ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है. बाइनरी ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं है, राइट? लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन. राइट?
Let us do third question. Question number 3. In question number 3, we have a set having elements 1, 2, 3, 4. We have a set having elements 1, 2, 3, 4. A set has elements 1, 2, 3, 4, 5, and a binary operation. This is a binary operation A, and this is a symbol which is used for binary operation. This is symbol of conjunction. This is equal to, इसका मीनिंग हमें गिवन है minimum of AB, minimum of AB. For example, if we find out, हम फाइंड करते हैं, यह हमें इस ऑपरेशन के बारे में गिवन था. For example, if we find out one of this, it means minimum of 1, 2. और 1, 2 में से कौन मिनिमम है? 1. So इसका आंसर क्या होगा? 1. Suppose we are finding this. This implies minimum of 2 and 3. And 2 और 3 में minimum कौन है? That is 2. Right? Suppose we are finding 3, this 5. It means minimum of 3, 5. And what is minimum of 3, 5? Which is 3. Like this. So इस टाइप से ये operation defined है. Now we have to write operation table for this operation. We have to write operation table for this operation. So how we will write? These are the elements 1, 2, 3, 4, 5, right? Here we will write the same element 1, 2, 3, 4, 5, and our operation will be here, right? इसके लिए हमें operation table लिखनी है. Okay बच्चों? So let us see what will be the minimum of, suppose we are operating this operation on these two, then what will be minimum of 1 and 1? 1, 1 का minimum क्या होगा? We are operating this operation on 1 and 1, यानी कि this of 1, 1, minimum of 1 and 1, minimum of 1 and 1, and 1, 1 का minimum दोनों में से smaller कौन है? 1. So minimum of 1 and 1 will be 1. इनका minimum कौन होगा? 1. So here we will write 1, right? And then minimum of 1 and 2. 1, 2 का minimum कौन है? It is 2. 1, 2 का minimum कौन होगा? This. Then 1 and 3. Minimum of 1 and 3 will be, minimum of 1 and 2 is 1. Minimum of 1 and 3 is also 1. Minimum of 1 and 4 will be 1. Minimum of 1, 5 will be 1. 1, 5 का minimum कौन होगा? This. Right? 1, 3 का minimum 1. Minimum will be this. And minimum of 1 and 5 will be this. Okay? Now, what will be the minimum of, now we will operate 2 and 1. 2 this conjunction sign and 1. 2, 1, minimum of 2, 1. Minimum of 2, 1 will be 1, right? Minimum of 2, 2 will be 2. Minimum of 2, 3 will be 2. 2, 4, 2 and this 2. इन सब का minimum कौन होगा? This. Right? Then third one, minimum of 3 and 1. Minimum of 3 and 1 will be 1. Then minimum of 3, 2 will be 2. Minimum of 3, 3 will be 3, 3, 3. Like this. Right? Hope you are understanding. Right? Then minimum of 4, 1. 4, 1 का minimum कौन है? 1.
4 2 का मिनिमम 2, 4 3 का मिनिमम 3, मिनिमम 4 4 is 3, minimum of 4 4 is 4 and minimum of 4 5 is also 4. Then minimum of 5 in 1 will be 1, 5 2 will be 2, 5 3 will be 3, 5 4 will be 4 and minimum of 5 5 will be 5. Right? So this is the operation table for this operation. And one year मुझे याद नहीं है, in that year this question was of 4 marks, right? It was around 2010 or 9. This question was of 4 marks, just to write operation table for this operation, right? Let us do one more question, that is fourth question. In fourth question, में हम एक ऑपरेशन टेबल गिवन है. ऑपरेशन टेबल हम पिछले क्वेश्चन की यूज करते हैं. वहां पर हमें एक ऑपरेशन गिवन है स्टार, राइट? सेम सेट ए गिवन है हमें, राइट? एंड 1 2 3 4 5. ओके, टेबल में एलिमेंट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. फर्स्ट रो इज 1, second row is 1 2 1 1 2. This element is 1 1 2 1, then it is 2 and 1, right? Third question, 1 1. This element is 1 and this one is 3. This is 1, this is also 1. And fourth row 1 2 1 4 1 2. This is 1, this is 4 and this is 1. इसमें हमें given है all these elements are 1. ये क्वेश्चन में, ये टेबल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में given है. एंड इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4. एंड इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें हमें फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4, राइट? सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है each star is commutative, right? And in third part we have to calculate 2 star 3 2 star 3 star 4 star 5, right? ये सब हमें कैलकुलेट करना है. ओके, लेट अस ट्राई. फर्स्ट पार्ट 2 स्टार 3. तो टेबल से आपको 2 स्टार 3 फाइंड करना है. 2 स्टार 3. सो 2 को आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, 2 और 3 बाद में. 2 स्टार 3 विल बी दिस एलिमेंट, यानी कि 2 स्टार 3 आपका क्या होगा 1. 2 स्टार 3. सो 2 स्टार 3 को आप इधर लेफ्ट साइड से 2 देखेंगे, टॉप साइड से देखेंगे, their common element becomes 1. It means 2 star 3 is 1. Then we have star and 4. Now you need to check 1 star 4. So 1 को आपको लेफ्ट साइड में देखना है और 4 को टॉप मोस्ट रो में. So 1 star 4 is 1. By the table 1 star 4 is 1. So 2 star 3 star 4 इसका आंसर आपके पास क्या आया है 1. Okay. Now this 2 star 3 star 4, 2 star 3 star 4. 3 you will check 3 on left hand side and 4 on topmost row. So we will find it is 1, right? So 3 star 3 को आपको यहाँ से देखना है, star 4 आप यहाँ से देखेंगे. 3 star 4 and 3 star 4 is 1. Now it is 2 star 1. Now what is 2 star 1? 2 is this star 1, 2 star 1.
What is 2 star 1? This is 1, right? This is also 1. वैसे भी ये एसोसिएटिविटी चेक टाइप से चेक हुआ है, 2 स्टार 3, इन दोनों का आंसर हमें फाइंड करना था, ये इक्वल है. नाउ इज स्टार कॉम्यूटेटिव? क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है? ये देखने के लिए एक आइडिया मैं आपको देता हूं कि स्टार कॉम्यूटेटिव है या नहीं. इसके लिए आप एक डायगोनल क्रिएट करेंगे यहाँ पर लाइक दिस. ये डायगोनल आपको बनाना है. टेबल से अगर आपको कम्यूटेटिविटी चेक करनी है, एक्चुअली this is not the right diagonal. Right diagonal will be like this. ये होगा हमारा डायगोनल, ठीक है. सो डायगोनल के बोथ साइड की टेबल को आप चेक करेंगे. डायगोनल के बोथ साइड अगर टेबल आपकी एक जैसी है, कैसे चेक करनी है? पहले आप यहाँ देखेंगे 1 और इधर से भी आपको देखना है 1. फिर टेबल के यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स, बोथ एलिमेंट्स आर 1 1. इस साइड से भी दोनों एलिमेंट्स हमारे 1 1 है. यहाँ पर एलिमेंट्स आपके क्या हैं? 1 2 1. इधर से भी हमारे एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 1. फिर इस साइड से आप देखेंगे 1 1 1, सारे 1 है. इधर से भी आपके सारे एलिमेंट्स 1 है. आपको स्टार से लास्ट के एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हुए एक डायगोनल क्रिएट करना है. डायगोनल के बोथ साइड आपको टेबल को ऑब्जर्व करना है. इधर से 1, इधर से 1, राइट. फिर 3 के लिए आप देखते हैं दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर 1 है. इधर से भी आप देखते हैं तो दोनों एलिमेंट्स 1 है. 4 के लिए दोनों एलिमेंट्स 1 2 1 है. इधर से 1 2 1 है. 5 के लिए देखते हैं सारे एलिमेंट्स 1 1 1 है. इधर से भी 1 1 1 है. टेबल के इस डायगोनल के दोनों साइड अगर टेबल सिमेट्रिकल है, इन दैट केस ऑपरेशन आपका क्या होगा? कम्यूटेटिव. ठीक है. किसी भी एलिमेंट एग्जांपल को लेके आप चेक भी कर सकते हैं. सो बाय द टेबल स्टार, यस. इसका आंसर हमारा क्या होगा? यस, स्टार इज कम्यूटेटिव. एंड थर्ड पार्ट में हमें चेक करना है 2 स्टार 3. 2 स्टार 3. देन व्हाट विल बी 2 स्टार 3? 2 स्टार 3 is 1. 2 star 3 is 1 star. 4 star 5. 4 star 5. This is also 1. 4 star 5 is 1. And 1 star 1. 1 star 1 is again 1. Right? So its answer will be 1. Right? Now we have question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल है हमारी. इसको आप माइंड में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो एसोसिएटेड विद क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है स्टार डैश. एक बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है स्टार डैश. सेट ए हमें गिवन है. सेट ए हैज एलिमेंट्स 1 2 3 4 5. and star dash is a binary operation. star dash हमें यहाँ पर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, राइट. एंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए स्टार डैश बी फाइंड करते हैं. इट मीन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. Is this operation is same as the operation star defined in example 4? क्या ये वही ऑपरेशन है जो एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्टार जो ऑपरेशन है, क्या हमारा स्टार डैश ऑपरेशन भी सेम है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा था जो सेट हमें गिवन था 1 2 3 4 5. सेट ए वाज 1 2 3. क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है? ऑपरेशन हमारा कौन से सेट पे डिफाइंड है? सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 पे डिफाइंड है. यानी कि जिन सेट्स पे ये ऑपरेशन डिफाइंड है वो दोनों क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन 5 में सेम है, राइट.
सो अब कैसे चेक करेंगे कि स्टार डैश और स्टार सेम ऑपरेशन है? इसके लिए हमें ऑपरेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी। सो ऑपरेशन टेबल क्या होगी? स्टार डैश, राइट? नाउ दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, राइट? इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। हम स्टार की टेबल ऑलरेडी हमारे पास जो क्वेश्चन 4 में थी, ये क्वेश्चन 4 की टेबल है, क्वेश्चन 4। और यहाँ पर सेट हमें क्या गिवन था? सेट हमें गिवन था 1 2 3 4 5। और बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या था? बाइनरी ऑपरेशन हमारा स्टार था यहाँ पर। सो इसकी हम ऑपरेशन टेबल अगर बनाएं, देन वी विल सी दैट 1 स्टार डैश 1 अगर फाइंड करेंगे तो मीन 1 और 1 का एचसीएफ। 1 स्टार डैश 1 का मीनिंग क्या है? एचसीएफ ऑफ 1 एंड 1। 1 1 का एचसीएफ क्या होता है? 1, राइट? तो 1 1 का एचसीएफ हमारा क्या आएगा? 1। फिर 1 2 का एचसीएफ क्या होगा? दैट इज ऑल्सो 1। 3 1 का एचसीएफ 1, 4 1 का एचसीएफ 1, 5 1 का एचसीएफ 1। 5 में और 1 में क्या कॉमन है? 5। 4 1 में क्या कॉमन है? 4 1। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? दिस। अब 2 1 का एचसीएफ क्या होगा? 1। 2 2 का एचसीएफ क्या होता है? 2 और 2 में क्या कॉमन है? 2। 2 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1। 2 और 3 में क्या कॉमन है? 1। 2 4। 2 4 का एचसीएफ 2 एंड 2 5 का एचसीएफ क्या होगा? 1, क्योंकि 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। देन वी हैव 3 स्टार 1। 3 स्टार 1 मीन एचसीएफ ऑफ 3 1। 3 1 का एचसीएफ 3 1 का एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। 3 2 का एचसीएफ 1 होगा। 3 3 का एचसीएफ 3 होगा। 3 4 का एचसीएफ 1 होगा। 3 5 का 1 होगा। देन वी हैव एचसीएफ ऑफ 4 एंड 1 1 होगा। एचसीएफ 4 2 2 होगा। 4 और 2 में क्या कॉमन होता है? 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 4 का एचसीएफ 1 होगा। 4 4 का एचसीएफ क्या होगा? 4, राइट? एंड देन 4 5 का एचसीएफ दैट इज 1। देन वी हैव 5 एचसीएफ ऑफ 5 एंड 1 is 1, 5 2 में 1, राइट? 5 3 में 1, 5 4 में 1, HCF of 5 5 is 5, राइट? दिस इज अवर ऑपरेशन टेबल। हमारे इस स्टार डैश ऑपरेशन के लिए टेबल हमारी क्या होगी? अगर दोनों ऑपरेशन सेम सेट्स पे डिफाइंड है, अगर दोनों ऑपरेशंस की ऑपरेशन टेबल सेम मिलती है, इट मीन दे आर सेम ऑपरेशन, राइट? सो वी विल कंपेयर देयर ऑपरेशन टेबल, और आप देख सकते हैं बोथ दीज हैव सेम ऑपरेशन टेबल, इट मीन बोथ ऑपरेशंस आर सेम। सो हमारा आंसर क्या होगा? स्टार डैश इज सेम, स्टार डैश इज सेम एज ऑपरेशन स्टार इन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में जो ऑपरेशन स्टार है वही क्वेश्चन 5 में स्टार डैश ऑपरेशन है, राइट?